Good morning. Okay, the PowerPoint is visible. This PowerPoint is visible. No, ma'am. No, ma'am. Now it is visible. No, ma'am. No, ma'am. Now it is visible. No, ma'am. File, madam. Just wait. Students, there is some problem in sharing of the screen. Okay. Wait for a few minutes. Till that period, I would like to explain the later part of the this brain.
regarding this metencephalon. Okay, so metencephalon has cerebellum and pons, as I told you in the last class, and the last part of the brain is myelencephalon, and this myelencephalon is made up of medulla oblongata. Okay. This medulla oblongata, actually it is the pod-like structure or cylindrical structure that I would like to show the different parts of the brain here. Am I visible to you? मैं दिखाई दे रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we are having a brain as well as spinal cord with us. Okay, this is this brain which I removed from this cranial cavity. This is meant for you. आप लोग आते तो इसको हम explain करते. You can see, is it visible? This brain is visible. Yes, ma'am. Here the brain is completely covered with the dura mater. Okay, and we have to remove this dura mater. Okay, later on when you will come, then we will remove this dura mater to see the different parts of the brain. This is intact one. Okay, having the spinal cord. This is the long one. Is the spinal cord having spinal nerves attached to this. Is it visible? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो ये brain with covered with the dura mater is here, and here elongated spinal cord. This is the brain of the calf, okay, as well as the spinal cord. The complete portion which we have removed for explanation to you. ठीक है, जब आप लोग आओगे तब दिखाएंगे complete उसको open करके. ठीक है, तो we have remained this one as such for explanation. ठीक है, then this is the section of the head, the calf. ठीक है, is the whole head is there. ठीक है, we have cut it into two parts, and this is the sagittal section of the this head. ठीक है, there are two parts of the sagittal of the head of the calf. ठीक है, and here is the actually some portion is attached here. The head is visible. Yes, ma'am. दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा और टाइप कर दिया. This is the cranial cavity. दिख रही है? This is the cranial cavity lined with the dura mater. यहाँ पे भी dura mater लगा हुआ है. ठीक है? And anterior to this cranial cavity, this is the nasal cavity. ठीक है? यहाँ turbinate bones are present in the nasal cavity. So this cranial cavity is lined with the dura mater here. Okay, पूरी tough lining is there, and this is dura mater. ठीक है, पावर पॉइंट नहीं हो रहा था तो थोड़ी देर से दिखा देना. ठीक है, अभी रहने तो दिखा. ठीक है, anterior to this is the nasal cavity, and below the nasal cavity is the oral cavity, and this is tongue. ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? This is tongue, half portion of the tongue. So if we see the different position of the different cavities in the head, the caudal most is a cranial cavity, okay, which this lodges the brain. Anterior to the cranial cavity, this is nasal cavity, ठीक है, जो कहाँ आके ओपन होगी? नॉस्ट्रिल्स में.
दिस इज नेजल कैविटी ऑक्यूपाइड बाय द नेजल कॉन्का और टर्मिनेट बोन्स। तो यहाँ पे आपको खाली जगह नहीं दिख रही बिकॉज दिस नेजल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टू पेपर लाइक बोन्स, ठीक है। these are the dorsal this one is a dorsal turbinate and ventral turbinate, ठीक है। तो cranial cavity हो गई, then anterior to the cranial cavity is the nasal cavity, ठीक है। and below the nasal cavity is the oral cavity which lodges the teeth as well as the tongue which is visible here, okay। तो आपने comparative या कह सकते relative position of the different cavities देख लिए इसमें, ओके। एंड एंटीरियर टू दिस ये जो एरिया है देयर इज अ फोसा, यहाँ पे एक फोसा है एंड दैट इज द इथमोइडल फोसा व्हिच लॉजेस द और ऑल्फैक्टरी फोसा व्हिच लॉजेस द ऑल्फैक्टरी बल्ब हियर, ठीक है। तो यहाँ के अंदर की तरफ एक डिप्रेशन है एंड दैट इज द ऑल्फैक्टरी फोसा और इथमोइडल फोसा। Now here this is the brain covered with the dura mater, ठीक है। In the next diagram this head you have seen lining of the dura mater, यहाँ पे dura mater लगा हुआ है और दूसरे वाले में हमने dura mater निकाल दिया है and here the removed dura mater which is not having brain here, this is the dura mater, ठीक है, which covers the brain as well as the spinal cord, ठीक है। So this portion of the dura mater is known as cranial dura mater because it covers the brain, ठीक है। So what is dura mater? Dura mater is a tough fibrous covering over the brain, ठीक है। ये brain को जो cover कर रही है tough fibrous covering, ठीक है, on which present on the or which covers the brain, that is known as dura mater। तो नेचर वाइज क्या है? dura mater is tough and fibrous, ठीक है। another name for dura mater is pachymanix, another name is pachymanix because of its structure, ठीक है। it is tough structure, so hence it is also known as pachymanix, ठीक है। this dura mater as you see in the skull in the head region, this is closely applied on the inner aspect of the cranial cavity as you see here, ठीक है। तो dura mater is closely, वहां तो हमने निकाल दिया था but here this is present, closely applied on the inner part of the cranial cavity, means it remains attached to the periosteum, therefore there is no epidural space here, यहाँ पे कोई epidural space नहीं है because dura mater is closely adhered on the inner aspect of the cranial cavity, ठीक है। बिल्कुल जुड़ी हुई है, closely adhere है, तो इसके ऊपर कोई स्पेस नहीं, मींस देयर इज नो स्पेस बिटवीन द dura mater and the bony portion of the cranial cavity, ठीक है। thus in case of brain or in the cranial portion there is no epidural space, whereas in case of spinal cord जब आप देखोगे there is अभी बताया नहीं spinal cord, there is space between the dura mater and the vertebral canal because spinal cord is present in the vertebral canal, ठीक है। vertebrae जो रहते हैं they unite to form a canal and that is known as vertebral canal, ठीक है। तो spinal cord में there is presence of the epidural space but here there is no epidural space, ठीक है, because this is closely applied on the inner aspect of the cranial cavity, although we have removed it and this is the dura mater which we have removed this, ठीक है। ये ब्रेन को कवर किया हुआ था बट वी हैव रिमूव्ड दिस dura mater, ठीक है। एंड इट हैज सर्टेन फोल्ड्स, ठीक है, कवरिंग तो करता ही है, टफ है, इसके बीच दो लेयर के बीच में सम स्पेसेस आर देयर दैट इज हैविंग साइनसेस, कुछ ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा जैसे इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ये जगह दिख रही है ना, तो दीज आर नोन एज साइनसेस, venous sinuses present between the two layers of the dura mater, ठीक है। certain places some venous sinuses are present into which the arachnoid villi they invade, ठीक है। वो आपको मैं एक schematic diagram से भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो this is dura mater, is it visible? Yes, ma'am. ठीक है, कैसी कवरिंग है, टफ है। What is dura mater?
If you want to define it, what is durameter? Durameter is a tough, fibrous covering of the brain as well as spinal cord. ठीक है? In case of cranial durameter, it closely applied on the inner aspect of the cranial cavity. Therefore, in case of cranial durameter, there is no epidural space. Epi means ऊपर. ठीक है? Because it closely applied on the inner aspect of the cranial cavity, there is no epidural space. ठीक है? In case of cranial durameter. Okay? This durameter it covers the brain as well as some septal structure. ठीक है? कुछ folds होते हैं. Some certain folds of the durameter are the first one. थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे दिखाने में. ये अंदर की तरफ दिख रहा है आप लोग को, ये वाला फोल्ड ऐसे दिखाऊं. एक फोल्ड दिख रहा है अंदर की तरफ, ये विजिबल और नॉट. उल्टा करके दिखा के देखो. इज इट विजिबल फोल्ड? ये वाला. Yes, ma'am. ये फोल्ड बीचों बीच जा रहा है ना. दिस फोल्ड इज एक्चुअली सिकल शेप. अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड है. दिस फोल्ड इज जैसे सिकल पता है हंसिया होती है, कॉन्वेक्स एंड और कॉन्केव. ठीक है? तो दिस मिडिल फोल्ड जो दिख रहा है, दिस इज द फॉक्स सेरेब्राई. ठीक है? द वन फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर विच इज लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड. Why? Because long axis of the brain ऐसे होगी. ठीक है? The fold of the durameter, ठीक है, which is sickle shape, known as fox cerebri. ठीक है? तो what is fox cerebri? Fox cerebri is the median longitudinal sickle shape fold of the brain. ठीक है? कैसा है ये? मीडियन है. मीडियन मतलब बीच में, बिल्कुल मिड लाइन में है. दिस वन. ठीक है? This fox cerebri is the median, बिल्कुल मिड लाइन में चल रहा है, longitudinal sickle shape fold of the durameter. ठीक है? sickle shape fold of the durameter known as fox cerebri. एक्चुअली आप यहाँ देखोगे, ये दिख रहा है, ये ड्यूरामेटर से पूरी कवरिंग है. ये अंदर की तरफ जा रहा है फोल्ड. ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट देयर इज अ लाइन. ठीक है? तो अंदर की तरफ जैसे आप कपड़े में अगर सिलाई करोगे तो अंदर की तरफ देयर इज अ फोल्ड. सिमिलरली हियर देयर इज अ लाइन जो दिख रही बाहर से, मतलब अंदर देयर इज अ फोल्ड. ठीक है? क्लियर? इफ वी स्टिच एनी दिस क्लॉथ, ठीक है, उसको स्टिच करेंगे तो बाहर तो लाइन दिखाई देगी, बट इंटरनली देयर इज अ फोल्ड. तो सिमिलरली दिस लाइन इज प्रेजेंट. ठीक है? दिस लाइन गिव्स राइज टू दिस सिकल शेप फोल्ड इंटरनली व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. कहाँ रहता है ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर? बीचों बीच जाएगा सिकल शेप फोल्ड, हसिया जैसा. ठीक है? कॉन्वेक्सिटी बाहर की तरफ और अंदर कॉन्केविटी रहेगी, एंड इट पार्शियली सेपरेट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है? तो व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? आंसर प्रखर. व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? प्रखर तिवारी, are you able to understand? प्रखर, गणेश, नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ में आया? व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? Yes. नहीं आया? आ गया मैम. हाँ, तो व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? डिफाइन इट. ये मैम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल सिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है, वो उसमें मैम इससे क्या बोलते हैं, डूरामेटर के बीच में जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको बीच में पाया जाता है. ओके, ठीक है. ठीक है? तो इट इज द सिकल शेप, इट इज द सिकल शेप मीडियन लॉन्गिट्यूडल फोल्ड ऑफ द, मीडियन नहीं बोलोगे, मीडियन बोलोगे. ठीक है? मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर. किसका फोल्ड है ये? ड्यूरामेटर का है. शेप कैसा है? सिकल शेप है. पोजीशन क्या है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू
cerebral hemisphere. Means दो cerebral hemisphere के बीच में जो जगह है that is occupied by this sickle shaped fold of the dura mater. ठीक है, that is known as falx cerebri. अब क्लियर हो गया what is falx cerebri? ठीक है, तो सिकल शेप होने के कारण उसका ऊपर वाला जो अटैच पार्ट होगा that is convex and जो नीचे की तरफ कॉनकेव एरिया होगा. ठीक है, अगर आप यहाँ रहते तो क्लियरली दिखता. दिस सिकल शेप फोल्ड जो है ये वाला अंदर की तरफ है. ठीक है, दैट इज अटैच एंड इज कॉन्वेक्स. और अनदर एंड ये जो है ये वाला नीचे की तरफ फ्री एंड है एंड दैट रेस्ट ऑन द कॉर्पस कैलोजम. किसके ऊपर? क्योंकि जैसे मान लो ये एक ब्रेन का पार्ट ही है. ठीक है, हाफ पोर्शन ये इसके ऊपर कवर कर लेगा, छोटा है, और दूसरा पोर्शन ब्रेन का है नहीं यहाँ पे, और ये सिकल शेप फोल्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो इज इट क्लियर व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? आओगे तो और अच्छे से देख लेना व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई. सिकल शेप है, ड्यूरा मैटर का फोल्ड है. देन सेकेंड फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर इसी की कंटिन्यूएशन में जाएगा. एक ही आ रहा है लाइन. ठीक है, दिस इज फॉक्स सेरेब्राई. बाजू में इसके दो दिखाई दे रहे हैं, दिस टू. एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है. ये वाला फोल्ड, दिस वन. ठीक है, यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेंगे दोनों और यहाँ पे सेरिबेलम है. यार टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर प्रेजेंट और बीच में ही फोल्ड दिख रहा है. दिस इज फॉक्स सेरेब्राई एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम यहाँ पे है. सेरिबेलम इज प्रेजेंट हियर. ओके, तो अनदर फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर which forms the partition between the cerebral hemisphere and cerebellum. So this transversely oriented fold of the dura mater is known as tentorium cerebelli. ठीक है, what is tentorium cerebelli? Tentorium cerebelli is the fold of the dura mater which separates the cerebrum to cerebellum. या cerebral hemisphere कह सकते हैं. तो कैसा है? ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड, मतलब ऐसे जाएगा. अगर आप ब्रेन की पोजीशन सोचो, एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो दैट इज नोन एज फॉक्स सेरेब्राई. अनदर इज ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड जो ये रहेगा which forms a partition between the cerebrum and cerebellum, that is known as tentorium cerebelli. Clear है इतना? Fox cerebri and tentorium cerebelli. अंकित मिश्रा, क्लियर है? व्हाट इज टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड व्हाट इज फॉक्स सेरेब्राई? नहीं क्लियर हुआ? नितिन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टेंटोरियम सेरेबेलाई इज प्रेजेंट बिटवीन Please separate the cerebral hemisphere and cerebellum and transverse. ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जाएगा तो क्या होना चाहिए? इसका ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये आड़ा जाएगा ना ऐसे ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड. ठीक है, तो दैट इज द टेंटोरियम सेरेबेलाई. और फॉक्स सेरेब्राई कैसा है? मीडियम लॉन्गिट्यूडनल लाइन में है एंड सिकल शेप है. क्लियर हो गए दोनों फोल्ड. एंड थर्ड फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर, ठीक है, दैट इज डायफ्राग्मा सेल है. ये पूरा कवर करके नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, तो वेंट्रली दिस एक्चुअली इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, कट गया है. ठीक है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आपको वो आने के बाद दिखा दूंगी. हियर देयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो उसको जो कवर करेगा दिस ड्यूरा मैटर, बस उसको सुन लो. व्हाट इज अनदर फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर? थर्ड वन, दैट इज डायफ्रैग्मा सेले. ठीक है, डायफ्रैग्मा. सेला किस से रिलेटेड होता है? व्हाट इज सेला? Sella word is related with the pituitary gland. ठीक है, तो diaphragma cell actually, diaphragma cell actually is the umbrella like, ठीक है, umbrella like fold of the dura mater which covers the pituitary gland. ठीक है, देखो ऊपर से तो कवर कर लिया ड्यूरा मैटर ने. ठीक है, पीछे की तरफ पार्टीशन किसका बन गया? टेंटोरियम सेरेबेलाई का. बीच में पार्टीशन बन गया फॉक्स सेरेब्राई का. और नीचे जो कवर करेगा अराउंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए दिस राउंड डिस्क कह सकते हैं या अम्ब्रेला लाइक फोल्ड विच कवर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? सेला टर्शिका में. ठीक है, और ये अंदर से ऐसे कवर करेगा एंड दैट इज नोन एज डायफ्रैग्मा सेल. तो 3 फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर. वन इज, नितिन तीनों के नाम बताओ.
फर्स्ट से वो नाम मैम अभी तो बताइए। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है जो हाँ, जो नाम सैदर हेमिस्फीयर का है। तुम लोग नाम थोड़ा याद भी नहीं आ नोट रहा नहीं मैम करते हो? होता है। इसका मतलब नोट नहीं करते हो, खाली बैठ जाते हो? मैम बुक से वो घोष की बुक है उससे पढ़ा करते फिर नोट्स ये तो हो, बनाते हैं लेकिन आधी क्लास बुक। में बैठे तो एक दो पॉइंट तो नोट करना चाहिए ना। बुक से तो सब पढ़ लोगे, लेकिन यस अभी मैम। क्या पढ़ा है ये तो पता होना चाहिए। पॉइंट तो नोट कर यस सकते हो। मैम। तो फर्स्ट यस फोल्ड मैम। प्रखर, फर्स्ट फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर, हाक सेरेब्राई, कॉक्स सेरेब्राई। ओके, सेकंड फोल्ड गणेश, टेंटोरियन, गणेश टेंटोरियम सेरेब्राई। टेंटोरियम थर्ड सेरेब्रम, फोल्ड विकास, मैम डायफ्रैगमा सेला, डायफ्रैगमा सेला, सेले। ठीक है, तो किसको कवर करेगा डायफ्रैगमा सेले? इट कवर्स द पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ होती है, तो सेला टर्शिका में उस रहती है, और बट कवर्ड बाय द ड्यूरामेटर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क लाइक राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज डायफ्रैगमा सेले। ठीक है, तो तीनों फोल्ड क्लियर हो गए ड्यूरामेटर के। ओके, यस मैम, एस। और बाकी मैं स्कीमेटिक डायग्राम में आपको अभी पावर पॉइंट में दिखा दूंगी, बट आई वांट टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाफ पोर्शन है हैविंग गायराई एंड सल्काई दिख रहे हैं इसमें, विजिबल है? नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, अब जो वर्चुअल तो वर्चुअल ही दिखाई देगा बेटा ना, सामने देखते तो अलग चीज है। ओके, तो हाफ पोर्शन राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम दैट इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप इसको देखोगे यहाँ पे मैंने बताया था कि देयर इज डिफिकल्टी टू रिमूव द ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये थिन जो लगा हुआ है पोर्शन ना, दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, कंप्लीट नहीं है। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी बल्ब टूटा हुआ है। ठीक है, अटैच टू द दिस एंटीरियर पोल ऑफ द ब्रेन। तो ये क्या है? कट पोर्शन, ठीक है, ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये दिख रहा है बिल्कुल कहाँ पोजीशन है इसकी? वेंट्रल टू द क्रेनियल पोल ऑफ द ब्रेन। दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, but not the intact one. It is difficult to remove out the intact olfactory bulb. ठीक है, ये जो जा रहा है यहाँ से, दिस इज द आउटर olfactory striae। ठीक है, ये बैंड जो दिखाई दे रहा है आउटर olfactory striae, और ये लगा हुआ है ऑप्टिक नर्व। दिस इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक चियाज्मा आपको नहीं दिख रहा है, कट पोर्शन जो दिख रहा है दिस इज ऑप्टिक नर्व। मीडियली इफ यू सी, ये कैविटी दिख रही है अंदर, ये जहां मेरे फिंगर है ये वाली, तो दिस कैविटी इज नोन एज प्रखर। ये वाली मैम दिख नहीं रहा सही, नहीं दिख रही। अब दिख रहा ब्रेन? यस मैम, ये कैविटी ये वाली लैटरल वेंट्रिकल। हाँ नितिन बताओ। लैटरल वेंट्रिकल। आपने डायग्राम में देखा था ना, तो सेम दिस इज लेटरल वेंट्रिकल कैविटी प्रेजेंट इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऊपर पूरा ग्रे मैटर का पोर्शन लगा हुआ है एंड दिस हैज अ कैविटी। ठीक है, सब आप पढ़ चुके हैं पहले। तो दिस कैविटी इज द लैटरल वेंट्रिकल। इसके ऊपर एक कटी हुई लाइन दिख रही है, ऑल्दो नॉट इंटैक्ट वन। ये वाली जो लाइन दिख रही है क्या होना चाहिए? Corpus callosum. कैलोसम। गुड। ठीक है, अब ये राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है थोड़ा बीच में हॉलो है, क्यों? क्योंकि हम लोग स्पॉटिंग में रखते हैं, तो देयर इज इंप्रेशन ऑफ पिन। यहाँ पे लगाने से आप लोग स्पॉटिंग के लिए रखते हैं। तो दिस राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए? दिस राउंड, थैलेमस। हाँ गुड, थैलेमस है। ये क्या है? थैलेमस है। दिस इज थैलेमस। ओके, एंड आई वांट टू शो बिहाइंड द थैलेमस देयर इज राउंड बॉडी। ठीक है, और उसके पीछे एक छोटी बॉडी और दिख रही है, दिख रही है? One body is this one, another is small body behind the thalamus. ठीक है, one round large body and there is small another body. क्या होगी ये? कौन बताएगा? नितिन? हाइपोथैलेमस, हाँ, क्या है ये? प्रदीप? हाइपोथैलेमस,
Hippo? हिप्पोकैम्पस No. This is not Hippocampus. hippocampus. This round Pineal body body. behind the thalamus. Pineal Pineal body. Pineal gland. No. Epithalamus. Body round body बेटा ये. Geniculate body. No. Thalamus से पीछे thalamus geniculate body is not visible. This is a part of the midbrain. अब बताओ. कार्पोरेट जमीना Midbrain का part है ये. Corpus quadrigemina. Okay, good. This is corpora quadrigemina. This is superior colliculi. ये क्या है? This is superior colliculi. And behind this there is a small one. This is inferior colliculi. This is inferior colliculi. This is superior colliculi. Pineal gland जो है very delicate structure. हो सकता है इसमें निकल भी गया होगा. जितने बार हैंडलिंग करेंगे तो some lead to the damage to the structure. ठीक है, तो pineal यहाँ पे नहीं दिख रही है. This is superior colliculus और this is inferior colliculus. ठीक है, और below this there is a line. एक line दिख रही है. Just below this two bodies there is a straight line. क्या होगी वो? This straight line. ये दिख रही है depression. Aqueduct of Sylvius. Good. ठीक है, this is aqueduct of Sylvius and here ventrally present is which is the part of the midbrain. ये क्या होना चाहिए? Crura cerebri. Crura cerebri. Good. देखो crura cerebri यहाँ से दिख रहे हैं ना, ये यहाँ दिखा है मैंने. ठीक है, इधर देखोगे तो this is cerebral peduncle. Ventral aspect से clear दिखती ना, तो this is crura cerebri. From here this is look like this. ठीक है, तो this corpora quadrigemina, this one, उसके नीचे ये हो जाएगा आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस एंड बिलो दिस देयर इज सेरेब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरेब्राई. ठीक है, ये दिखाई दे दिया. अब आपको हिप्पोकैम्पस दिखाना है मुझे. इट इज नॉट इजीली विजिबल, वी हैव टू रिमूव समथिंग. ठीक है, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जा रहा है अंदर की तरफ. ठीक है, उठा हुआ. दिस वन मैंने जहां उंगली लगाई ना, ये बिल्कुल अंदर जा रहा है इन द दिस लेटरल वेंट्रिकल एंड दिस इज द हिप्पोकैम्पस. ये हिप्पोकैम्पस है. मैम थोड़ा लेफ्ट लेना, लेफ्ट नहीं दिख रहा. अब दिख रहा है. एक्चुअली क्या है, इतने दूर से तुम लोग क्या बताएं. ये वाला जो है हिप्पोकैम्पस है, इंटैक्ट रहेगा तो नहीं दिखाई देगा व्हेन वी ओपन दिस. ठीक है, एंड कॉर्डली जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, इस तरीके से जाता है. सिमिलरली दिस हिप्पोकैम्पस इट गोज लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज हिप्पोकैम्पस. आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर किस से बनेगा? Thalamus, choroid plexus. This is caudate nucleus. This ovoid structure is visible. आप फील करके देखो, यहाँ उठा हुआ एरिया दिख रहा है. This is this caudate nucleus. ठीक है, उसके पीछे this choroid plexus जो होता है वो तो इतने विजिबल नहीं होगा बिकॉज दैट इज डेलिकेट स्ट्रक्चर, बट हिप्पोकैम्पस इज विजिबल हियर. हिप्पोकैम्पस एंड caudate nucleus. ठीक है, एंड दिस इज थैलेमस, corpora quadrigemina, then iter and cerebellum. Sorry, crura cerebri और मैं कहाँ गिरा हूँ? गिरा छुआ खाने से. yes, वो दिन गिरा है. Kisle, off your mic. Kisle, what happened? Kisle? Nothing, I'm sorry. It is difficult to see because इतने आप लोग दूर हो, हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, everything I told in this with the help of this PowerPoint photographs से दिखाया, but these are the actual one which we show in the practical class to you. ठीक है, तो आप खुद हाथ में ब्रेन लेके देखते हो तो that is the different thing. तो अभी आप दूर से ही देख रहे हो और we are trying to show as much as possible. ठीक है, तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, यहाँ caudate nucleus हो जाएगा, choroid plexus because it is a tuft of capillary, तो delicate one, तो not visible properly क्योंकि जैसे ही हैंडलिंग बाहर निकालते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाती है. ठीक है, बिकॉज वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ हिप्पोकैम्पस आप देख सकते हो, caudate nucleus, thalamus is there. अंदर देखोगे थैलेमस बॉडी दिख रही है. ठीक है, तो corpora quadrigemina, then iter or aqueduct, and here is the crura cerebri. उसमें पीछे की तरफ cerebellum was not there. ठीक है, this is again the sagittal. ये दिख रहा है पूरा, इसमें cerebellum भी दिख रहा है, काला काला दिख रहा है.
विजिबल है ये पोर्शन, Yes, ma'am. दिस इज सेरिबेलम, ठीक है। तो ये थैलेमस है, corpora quadrigemina, then this iter aqueduct of Sylvius, here is the this crura cerebri, and अगर इसके पीछे का देखेंगे तो this is rhombencephalon, this part is the rhombencephalon जो आपको विजिबल है, ठीक है, comprised of cerebellum and pons, और पीछे की तरफ this is medulla oblongata, ठीक है। arbor vitae आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, arbor vitae of the, ठीक है। तो जो मैंने ब्रेन पकड़ा हुआ हाथ में, दिस इज द कट सेक्शन और मीडियल सेक्शन ऑफ द ब्रेन ऑफ द काफ, नॉट द एडल्ट वन, ठीक है। ये किसका, काफ का, इसलिए इतना छोटा है। स्टॉक आपको दिखाई नहीं देंगे, बस जुड़ा हुआ पोर्शन रहता है, ठीक है। देन आई वांट टू शो दिस फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो नीचे की ओर स्पेस जो दिख रहा है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल का फॉर्मेशन देखेंगे तो डॉर्सली फॉर्म्ड बाय द सेरिबेलम, वेंट्रली बाय द पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ये कैविटी है, तो रूफ किससे बनेगी, बाय द सेरिबेलम, ठीक है, एंड फ्लोर बाय द पॉन्स एंड मेडुला। एक वॉल्व ऑफ व्यूसेस भी बोलते हैं रूफ जो बनाता है, एक्चुअली दैट इज अ थिन शीट ऑफ व्हाइट मैटर, वो विजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो हाउ वी डिस्क्राइब द फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, वेरी स्मॉल कैविटी जो इतने अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगी। Roof of this fourth ventricle is being formed by cerebellum, floor by the pons, ये pons है, ये जो दिख रहा है कटा हुआ स्ट्रक्चर, this one is the pons, and behind this is the medulla oblongata, ठीक है। तो cerebellum, pons, and the caudally there is medulla oblongata, ठीक है। तो formation of the lateral ventricle, ये छोटा सा हाफ दिख रहा है, इसका पोर्शन और होगा। तो lateral ventricle is diamond shaped cavity, diamond shaped elongated cavity of the rhombencephalon, dorsal roof बोल सकते हैं, roof is formed by the cerebellum, floor by the pons and medulla oblongata, and lateral walls by the 3 pairs of the cerebral peduncle. किसने name this 3 pairs of cerebral peduncle? 3 pairs of the cerebral peduncles. Name them. किसले? गौतम, नहीं पता? कृष्णकांत, cerebral peduncles, name the cerebral peduncles. Nitin, Yes, ma'am. name the cerebral peduncles, 3 pairs of cerebellar, so cerebral not cerebellar peduncles. No idea, ma'am. कल की क्लास में नहीं पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। Ma'am, tegmentum, sustaining nigra, and No. crus cerebrum. 3 pairs of cerebellar peduncles. कौन? Ma'am, branchium conjunctivitum, branchium pontis, and restiform body. गुड, ठीक है। कुछ तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, क्लास करने के बाद नहीं देखते हो कुछ भी ना। क्लास में जो मैं 10-10 बार बताती नोट नहीं करते हो क्या पढ़ा रहे। 3 pairs of the peduncles, the first pair is known as brachium conjunctivitis, ठीक है। सेकंड इज brachium pontis, थर्ड वन इज द रेस्टिफॉर्म बॉडी। कल मैंने कल की शायद क्लास में बताया था, तो आप लोग भूल जाते हो या पढ़ते नहीं हो? मैम वीडियो हैंग हो गई थी अभी आपकी, इसलिए। क्या वीडियो और ऑडियो हैंग हो गई थी अभी। वीडियो ऑडियो हैंग हो गई थी? अभी तुम लोग को जो भी एक्सक्यूज है, क्या करें बताओ, ठीक है। तो अच्छा, दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, दिस इज सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है। ऑल्दो इसमें भी क्लियर विजिबल नहीं होता, उसमें अपन बस इतना बोलेंगे, कंप्राइज्ड ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर। पिरामिड मींस दैट इज हैविंग द दिस different fibers as well as olivary bodies and restiform bodies. Restiform body आपने पहले बता दिया था, that is the stalk of the cerebellum which connects the cerebellum to the medulla oblongata. तो restiform body होगी medulla oblongata में। सेकेंड आप पढ़ोगे pyramid, pyramid means bundle of fibers are there, and this third one is the olivary body, ठीक है, that is related with the motor function of the medulla oblongata. तो medulla oblongata में इतना ही पढ़ना है। Where the medulla oblongata is present, it rests on the this
बेसी ऑक्सीपिटल, बेसी ऑक्सीपिटल बोन पढ़ी है ना? ऑक्सीपिटल के 3 पार्ट पता है? कृष्णकांत, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. किसले? नहीं पता? किसी को नहीं पता? तनु? मैम लैटरल बेसी ऑक्सीपिटल सुप्रा ऑक्सीपिटल. हाँ, मुझे आवाज दे, जोर से बोल आशीष. लैटरल सुप्रा ऑक्सीपिटल बेसी ऑक्सीपिटल. हाँ, लेटरल, सुप्रा एंड बेसी ऑक्सीपिटल. तो सिंपल चीजें पढ़ चुके हो तो थोड़ा अटेंटिव रहो, अलर्ट रहो. जहां हम लोग पूछते हैं वहां आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हो. एटलीस्ट जो चीज पढ़ाते हो वो तो पढ़ना चाहिए आपको. कुछ पॉइंट्स तो याद रहने चाहिए. आपके मिड टर्म होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, मई में. तो एटलीस्ट हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाओ, थोड़ा रिवाइज करो. ठीक है, एक मिनट. रघुवंशी, यस मैम. नेम द पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, mesencephalon. कॉर्पोरा quadrigemina, Yes, cerebral aqueduct, yes, crura cerebri. good. ठीक है. Then Dipali, Yes, ma'am. roof of the lateral ventricle is being formed by which structure? Name that structure. Corpus callosum. Good. ठीक है. Then Chinmay, name the structures which form the floor of the lateral ventricles. Ma'am, caudate nucleus, Yes. choroid plexus, Okay. thalamus, Okay. hippocampus, and some parts of fornix. Good. ठीक है. Means you are reading, you are studying something. ठीक है. Then the structure which connects the 3rd and 4th ventricle. Yadam Chaudhary. The structure which, yes, Aqueduct sylvi of sylvius. aqueduct of Sylvius. ठीक है. Kisley, tree-like cut structure of the cerebellum is known as. Cut structure of the cerebellum which looks like tree is known as. मैम आर्बर बिटी. Arbor. Okay. Then मैम नेटवर्क इशू हो रहा है मैम बहुत. network नहीं है. Nitin, name the lobes of each cerebral hemisphere. मैम आवाज आपकी बहुत कट रही है इधर मेरी तरफ, और क्लियर नहीं आ दूर पा हो गई रही. एक्चुअली. एक मिनट. Okay. Lobes of each cerebral hemisphere. Name the lobes of each cerebral hemisphere. 4 लोग बताए थे. मैम आवाज कट रही है. क्यों दीपाली, आवाज नहीं आ रही मेरी? दीपाली, आ रही है मैम. आ रही है को मैम. नहीं आ रही आवाज. में भी हो सकता है नेटवर्क इशू, कभी कभी हो जाता है. क्वेश्चन पूछने में नेटवर्क इश्यू हो जाएगा. फिर से बोल. हाँ, लोब्स ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब आ रही है आवाज? नो मैम, बहुत. तो फिर नो मैडम कैसे बोल रहे हो? Okay. Then Ashish, 2 tracts of the rhinencephalon. ठीक है, these tracts originate from the olfactory bulb. Name those tracts. And inner string. And Good. Outer olfactory striae and inner olfactory inner striae. string. Okay. Krishnakant,
What is mammillary body? From which aspect of the brain it is visible? Mammillary body. मैम कॉर्पस स्ट्रिएटम में. कॉर्पस स्ट्रेटम में होगा मेमिलरी बॉडी बेटा. Another name for mammillary body, Krishnakant. Another name for mammillary body. Dipali. Corpus albicans. Corpus albicans. Actually, it is white fibrous band, okay, present on the ventral aspect of the brain, and it is in continuation with the fornix. Fornix से continuation में रहता है, okay. Then Raghuvanshi. Yes, ma'am. Tell me the two nuclei of the corpus striatum. Name the nuclei. Caudate nucleus and lenticular nucleus. Good. ठीक है, caudate nucleus and lenticular nucleus. Then Baghel. Tell me the white matter which separates the caudate nucleus and lenticular nucleus. Name that part. That white matter. Achal Baghel, ना? Yes. हाँ. Name that structure or white matter which separates the caudate nucleus and lenticular nucleus. Lenticular. उसका कुछ दूसरा नाम है. Caudate nucleus, then that portion is there, then lenticular nucleus. That white matter is known as Internal capsule, ma'am. good. हाँ, internal capsule. good. ठीक है. Yes, ma'am. तो आप जितना ब्रेन मैंने पढ़ा दिया, आप उसको कुछ टर्म्स तो बुक में और डिटेल में लिखा है, क्योंकि इतना सारा पढ़ा नहीं पाई जैसे भी हो, तो आप उसको जितना मैंने पढ़ा एटलीस्ट उस पोर्शन को, जैसे हिप्पोकैम्पस हो गया, कॉर्पस स्ट्राइटम हो गया, लैटरल वेंट्रिकल हो गया, देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, पूरा आप अच्छे से उसको रट डालिए जितना बुक में लिखा है. ठीक है, तो आपकी मिड टर्म के लिए तैयारी अच्छे से हो जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द क्रेनियल नर्व्स. उसके पहले मैं थोड़ा आपको रिगार्डिंग दिस एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर का डायग्राम दिखा देती हूँ. ठीक है, बाय दिस पावर पॉइंट, क्योंकि आपको इसमें बुक में ब्रेन में नहीं दिखाई देगा. ओके, ठीक है सर. Now PowerPoint is visible. Is it visible? Okay. Yes, ma'am. Just I want to show this meninges. I have already explained the dura mater. Okay, dura mater of Pachymeninx, and 3 folds of the dura mater already explained to you. ठीक है, this is the schematic diagram of the meninges of the brain. ठीक है, तो आप ये ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है, 2 लेयर. सबसे पहले ऊपर जो येलो कलर की दिख रही है, दिस इज पेरियोस्टियम. व्हाट इज इट? इट इज पेरियोस्टियम, क्योंकि स्कल के अंदर है. ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी, दिस इज द येलो वन इज द पेरियोस्टियम. ठीक है, एंड दीज टू आर द different 2 layers of the dura mater.
इन बिटवीन दीज टू प्रेजेंस ऑफ द वीनस साइनसिस, ये आपको जो ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है प्लस वीनस साइनसिस जैसे ये दिख रहा है, तो वीनस साइनसिस आर देयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरामेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर आपको बता दिया व्हाट इज ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर इज टफ फाइब्रस, आपने देख भी लिया कैसी है, फाइब्रस कवरिंग है। ठीक है, इफ यू टच इट तो इट इज बिल्कुल टफ है, फाइब्रस है। ओके, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज द ड्यूरामेटर। ठीक है, दिस ड्यूरामेटर इज हैविंग सम स्पेसेस, वीनस स्पेसेस नोन एज वीनस साइनसेस। ठीक है, डिफरेंट फोल्ड्स आपको बताई दिए ड्यूरामेटर के कौन कौन से होते हैं, फॉक्स सेरेब्राई, देन सेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेले। जस्ट बिलो द ड्यूरामेटर, ठीक है, देयर इज अनदर लेयर, जो ये वाली लेयर आपको दिख रही है जिसमें से ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ भी दिख रहे हैं, दिस लेयर इज नोन एज एरेक्नॉइड। ठीक है, तो एरेक्नॉइड एज वेल एज पायामेटर, दीज टू आर द डेलिकेट मेम्ब्रेन्स। ड्यूरामेटर कैसी है, टफ फाइब्रस है। ठीक है, तो ड्यूरामेटर को कैसे याद रखोगे, ड्यूरेबल, टफ। कैसे याद रहेगा, ड्यूरामेटर इज टफ, ड्यूरा से याद रखो, ड्यूरेबल मीन्स टफ है। ठीक है, बट एरेक्नॉइड एंड इनर लाइनिंग ये जो दिख रही है, दिस इज पायामेटर, दीज टू आर द डेलिकेट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो एरेक्नॉइड इज आउटर वन एंड पायामेटर इज इनर वन। ठीक है, तो दिस एरेक्नॉइड जो है, बिटवीन द एरेक्नॉइड एंड द ड्यूरामेटर देयर इज स्पेस जो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, एंड दिस स्पेस इज नोन एज subdural space. The space is known as subdural space. There is no epidural space in case of cranial this durameter. ठीक है, epidural space तो नहीं है, लेकिन ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, एंड दिस एरेक्नॉइड इट सेंड सम ग्रैनुलेशंस, ठीक है, और इन्वेजिनेशन दैट इज आल्सो नोन एज विलाई in the venous sinuses. Okay, what is the function of these venous sinuses? When there is increase in the CSF, because CSF is present between the this arachnoid and pyometer. ठीक है, तो यहाँ पे CSF present है, और this CSF when there is increase in the pressure of the CSF, cerebrospinal fluid का जो pressure increase हो जाता है ventricles में, तो that gets drained in the venous sinuses. वो कहाँ चला जाएगा, venous sinus में release हो जाएगा with the help of these granulations or villi of the arachnoid. ठीक है, तो functional significance समझ में आया of the arachnoid और arachnoid villi और granulation क्या करते हैं जब there is increase in the pressure of the CSF. ठीक है, अभी आपको flow of CSF थोड़ा बता दूंगी। तो pressure अगर increase हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे रिलीज करेंगे, this pressure the CSF get released in the venous sinus, मतलब ब्लड में चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दीज विलाई, एरेक्नॉइड विलाई। ठीक है, तो ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड के बीच में स्पेस कहलाता है सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, देन देयर इज अनदर स्पेस बिटवीन द एरेक्नॉइड एंड पायामेटर दैट इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फिल्ड विद द CSF। किससे फिल्ड रहता है वो, विद द CSF। ठीक है, देन द innermost layer is the pyometer. ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ जो लाइनिंग दिख रही है, this is pyometer, and pyometer is again very thin and delicate membrane. ठीक है, and it extend in the sulci of the cerebrum. आपने देखा होगा cerebral hemisphere में जो sulci होती है, groove होता है, वो उसके अंदर भी जाएगा, ड्यूरामेटर नहीं जाता अंदर। ठीक है, but this pyometer it goes अंदर की तरफ भी इन्वेजिनेट होगा। very thin membrane is there. ठीक है, जो कि जैसे जैसे ब्रेन का कंटूर होगा, कंटूर में जैसे जैसे गायराई सल्काई होगी, तो वैसे वैसे वो अंदर चली जाएगी, पायामेटर ऑल्सो। ठीक है, एंड इन एट द प्लेसेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, तो दिस पायामेटर इट रीचेस अप टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एंड दिस कंबाइंड विद द एपेंडाइमा, एपेंडाइमा तक जाएगी वेंट्रिकल वाले एरिया में, along with blood vessels and ependyma it forms the choroid plexus. ठीक है, क्योंकि इसमें blood vessels भी रहेंगी पायामेटर में, और ये वेंट्रिकल तक अंदर तक चली जाएगी along with ependyma. ठीक है, means the combination of the ependyma, pyometer and blood vessels lead to the formation of the choroid plexus, and that choroid plexus secrete the CSF. ठीक है, in the ventricles. And the flow of the ventricles कैसे होगा, आपने lateral ventricle देखा है,
तो लैटरल वेंट्रिकल में जो फ्लोर में कोरॉइड प्लेक्सस था, दैट सिक्रीट द CSF, ठीक है. CSF फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल इट गोज इनटू द थर्ड वेंट्रिकल वाया, किससे जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, कौन बताएगा? फोरामेन ऑफ मोनेरो. हाँ, फोरामेन ऑफ मोनरो से जाएगा इन द थर्ड वेंट्रिकल. दिस थर्ड वेंट्रिकल इट सराउंड्स द थैलेमस, इवन इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू थैलेमिक बॉडी, ठीक है. तो वो जो एरिया कहलाता है थर्ड वेंट्रिकल. एंड फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल दिस CSF इट गोज इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल by the presence of aqueduct. cerebral aqueduct, ठीक है, which is a link between the third ventricle and fourth ventricle. अब fourth ventricle में आने के बाद CSF है, it goes into the this spinal canal. आपको पता है because the spinal cord is also having a small lumen or tube, that is spinal canal lines by the ependyma, as well as this CSF also get reabsorbed, ठीक है, in the venous sinuses by the presence of this two foramina lashka present laterally, ठीक है. वो अपने को दिखाई नहीं देते, अपन बस उसको पढ़ रहे हैं. फोरामिना लश्का प्रेजेंट लेटरली एंड मिडिल में प्रेजेंट होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है. तो इससे ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द दिस वीनस साइनस, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ CSF. CSF सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में थ्रू कोरॉइड प्लेक्सस, वहां से जाएगा फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए इन द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल से आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से इट गोज इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, then fourth ventricle to spinal canal, as well as it gets absorbed into the venous sinus by the presence of the three foramina, means two pair रहेंगे, sorry एक जो रहेगा पेयर रहेगा known as foramina of Lashka and foramina of Mejendi which is middle one single रहता है, तो ये reabsorb हो जाएगा, ठीक है, अंदर. तो this is about the flow of the cerebrospinal fluid, ठीक है. इतना क्लियर है? और कुछ पूछना है इसमें? मैम यस. और एक मिनट लाइक CSF किससे एब्जॉर्ब करेगा? CSF दो फोरामेन से वापस ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, बाय फोरामेन ऑफ मोनरो, सॉरी फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड टू फोरामिना ऑफ लश्का, ठीक है. और वी कैन से अ पेयर ऑफ फोरामिना लश्का, ठीक है, उससे होगा एब्जॉर्ब, अंदर चला जाएगा वीनस फ्लो में, ब्लड में. एनीबॉडी? ये फिजियो में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फॉर्मेशन ऑफ CSF, कंपोजिशन ऑफ CSF, फ्लो ऑफ CSF फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये पढ़ा होगा आप लोग ने. क्यों दीपाली, पढ़ा है फिजियो में? नो मैम, अभी नहीं हुआ. तुम लोग को तो मटेरियल तो दे दिया है सर ने, ब्रेन का तो पूरा दे दिया मटेरियल. आई हैव सीन दैट. नहीं पढ़ा है तो उसको फिजियो में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे. तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, दे आर समथिंग, दीस टू सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, ठीक है. तो उसमें भी पढ़ोगे तो वही चीज रहेगी, कोई अलग से तो नहीं आएगी. तो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द ब्रेन. मैंने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है. यस मैम. जितना भी पढ़ा है ब्रेन में क्लियर है? यस मैम, क्लियर. उसको अब 2 दिन जब छुट्टी पड़ेगी आप लोग उसको अच्छे से याद करो. यस मैम. ठीक है, शुरू से लेके जो घोष की किताब है उसको पढ़ डालो बिल्कुल. जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ाई है, लाइक फॉक्स सेरेब्राई, टेंटोरियम सेरेबेलाई, देन डायफ्रैग्मा सेले, दिस ब्रेकियम पॉन्टिस क्या होता है, ब्रेकियम कंजक्टाइवम क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पस स्ट्राटम, ठीक है. ये सारी चीज आप अच्छे से रट लेंगे. व्हाट इज एर्बोर विटे, ठीक है. 10 फोलिया ऑफ द सेरिबेलम, जितनी चीज पढ़ाती है उसको आप रिवाइज करना, ठीक है. तो देयर इज नो क्लास टुमारो एज वेल एज डे आफ्टर टुमारो, मतलब सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, अब मंडे से क्लास है, ठीक है. इवन वी आर ऑल्सो हैविंग लॉकडाउन. यहाँ पे अभी क्लास, कॉलेज कंडीशन खराब है, ठीक है. सम ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स दे आर ऑल्सो पॉजिटिव फॉर कोविड, तो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम हियर, बट वी आर ट्राइंग टू टेक द क्लास. आज जैसे कॉलेज है नहीं, मीन्स जिसको आना है आ जाए, बट शेड्यूल वाइज ऐसा क्लास नहीं चल रही है,
मतलब कॉलेज नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्लासेस तो होगी, वर्क फ्रॉम होम है या घर से ले लो या यहाँ से ले लो, ठीक है। तो कोऑपरेट करो हम लोग को कि हम लोग किसी तरह आपका कोर्स बढ़ाते चले जाए। तो आप लोग जितना हो सके अपने हिसाब से पढ़ो बेटा घर पे, ठीक है। फिर से बोल रही, मिड टर्म आने वाले हैं, रेडी फॉर दैट। ऑस्टियो में आप पूरा स्कल पढ़ के रखोगे। एनी डाउट रिगार्डिंग स्कल आप पूछ सकते हो। आप मान लो फ्रंटल बोन पढ़ रहे, नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो। ऑक्सीपिटल बोन पूछ सकते हो। क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंट फोरामिना नहीं समझ में आ रहे, तो एटलीस्ट जब भी आप पढ़ रहे में आपको जो भी डाउट होता है यू कैन आस्क, ठीक है। एग्जाम के समय नहीं बोलना कि नहीं समझ में आया था हमको, तो या हम क्लास नहीं कर पाए या नेटवर्क नहीं था, उस समय नहीं बोलना। अभी आपको जो भी प्रॉब्लम है हमसे इंटरेक्ट करते रहो, ठीक है। रोज क्लास में हम लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी बताओ अपनी प्रॉब्लम जो भी हो रही है, ओके। तो दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट में क्रेनियल नर्व्स, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक में ना लूँ, उसके बाद लूँ, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट विद द क्रेनियल नर्व्स। तो बेसिक चीज आपको क्रेनियल नर्व्स में पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हो, तो एक बार उसका टेबल जरूर आप देख लेना रिगार्डिंग 12 cranial nerves in sequential order. You must know the name of the cranial nerves. जैसे olfactory हो गई, ऑप्टिक हो गई, oculomotor, तो इनके sequential order में आप नाम याद करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं पूछूंगी फिर आगे स्टार्ट करूंगी, ओके। Okay, ma'am. Okay, this is all for today. Now I am leaving this link. Thank you. Okay, beta.